السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com اور میں ہوں غفران احمد۔ ناظرین، آج میں قصبہ کھیری کے محلہ بخاری ٹولہ میں موجود ہوں اور یہاں انجمن رضائے رسول جو ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر یعنی 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر مقدس مقامات کے ماڈلز تیار کرتی ہے اور ان کی زیارت کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے اسی محلے کی مسجد کے قریب انہیں نصب کیا جاتا ہے۔ ہزاروں ہزار لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پچھلے سال عید میلاد النبی کے موقع پر انجمن رضائے رسول نے دہلی کی شاہی جامع مسجد کا ماڈل تیار کیا تھا اور اس سال اس درگاہ شریف کا ماڈل تیار کیا جا رہا ہے جس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی صلاۃ و سلام اور فاتحہ خوانی کے ساتھ آغاز کیا گیا۔ آج ابھی کم و بیش 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ، 2 مہینے سے زیادہ کا وقت 12ویں شریف میں ابھی باقی ہے، لیکن اس ماڈل کو بننے کے لیے 2-2.5 مہینے کی ضرورت بھی ہے۔ ماڈل بنے گا ہندوستان کی وہ عظیم الشان درگاہ، ہندوستان کا وہ عظیم الشان آستانہ جہاں روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں، جہاں سے آج بھی فیضان جاری ہے۔ جو بھی جاتے ہیں اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں، اور وہ آستانہ کسی اور کا آستانہ نہیں بلکہ وہ آستانہ حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے۔ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ شریف کا ماڈل آج سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں انجمن رضائے رسول کی طرف سے جو ماڈل بنایا جا رہا ہے، جس کا آج آغاز ہو رہا ہے، اس کے کام کا آغاز ہو رہا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں اور کچھ لوگوں سے بات کروں، انجمن کے لوگوں سے۔ سب سے پہلے تو مختصر میں روشنی ڈال دوں حضرت سید پیر حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی پر۔ سید پیر حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 دسمبر 1429 عیسوی کو بخارا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت زینب اور آپ کے والد ماجد کبیر الدین ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب آن پہنچا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں حضور کا دیدار کیا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ زینب، تمہارا یہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس بیٹے کو انسانیت کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ حضرت سید پیر حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ سید ہیں اور کئی واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ جب آپ نے بچپن میں اپنے والدین سے ہی تعلیم حاصل کی اور ایک روحانی ماحول تھا گھر کا، اسی ماحول میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ 22 سال عمر شریف جب تھی تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد گرامی کے انتقال کے بعد میں آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ عبادت و ریاضت میں مشغول تھے اور باہر ایک عورت کی رونے کی آواز آئی، اور وہ عورت یہ دعائی دے رہی تھی کہ حضور کرم فرمائیے، میرے پاس تھوڑا سا تیل تھا وہ گر گیا ہے اور زمین نے اسے جذب کر لیا ہے،
آپ میری مدد فرمائیے۔ حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر تشریف لائے، اس عورت سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس عورت نے ساری بات بتائی۔ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمین کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور نچوڑا، اور آپ نے فرمایا خاتون جو تیرا تیل تھا وہ تیل اپنا حاصل کر لے اور یہاں سے جا، خوشی منا اور اللہ کا شکر ادا کر۔ آپ کی ولایت کا چرچا عام ہو گیا، بے شمار کرامات آپ سے ظاہر ہونے لگیں، اور اس کے بعد ایک اشارہ ملا، اور جو خواب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیکھا تھا آپ کی والدہ ماجدہ نے کہ یہ انسانیت کے لیے کام کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا میرا بیٹا، آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا اپنے ان بیٹے سے اور آپ کے ایک دوسرے جو بھائی تھے حضرت محمد ان کا نام تھا، اور ان دونوں سے کہا کہ بیٹے اب آپ لوگ ہندوستان میں جائیے، چونکہ ہندوستان میں اس وقت مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلائی جا رہی تھی، تو آپ سمجھ گئیں کہ یہی اشارہ دیا گیا تھا۔ آپ نے دونوں اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ ہندوستان جائیے اور وہاں انسانیت کا پیغام دیجیے، دین کی تبلیغ کیجیے۔ اس طرح سے حضرت پیر حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بھائی کے ہمراہ سمرقند ہوتے ہوئے ممبئی تشریف لائے، اور ممبئی تشریف لانے کے بعد میں پھر آپ کے بھائی نے کہا کہ بھائی اب مجھے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ میں واپس اپنے وطن جاؤں اور آپ یہاں تنہا رہ کر دین کا کام کیجئے، انسانیت کی بھلائی کا کام کیجئے۔ حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں پر آپ نے قیام فرمایا ممبئی میں، اور جو اس وقت جہاں پر آپ کی درگاہ شریف ہے، آپ کا آستانہ، آپ کی مزار شریف ہے، ورلی سمندر جو ممبئی کا ہے، اسی جگہ پر آپ تشریف رکھتے تھے، اور شروعات میں آپ سمندر کے کنارے بیٹھ جاتے تھے پتھر رکھ کر، اور قدم جو آپ کے ہوتے تھے وہ سمندر کے پانی میں ہوتے تھے، تو وہ جب سمندر کے پانی میں آپ کے قدم ہوتے تھے تو جنات اور مچھلیاں آ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دیتی تھیں۔ حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کی تبلیغ فرمائی، انسانیت کی بھلائی فرمائی، محبت کو عام کیا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا چلا گیا۔ اس کے بعد پھر جب آپ کی عمر شریف 85 سال ہوئی تو 85 سال کی عمر میں پھر آپ نے اپنے مریدین سے اور آپ نے عقیدت مندوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے کہا کہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اللہ اور اس کے محبوب کے گھر میں حاضری دے آؤں، یعنی میں مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف حاصل کر لوں۔ غرض آپ تشریف لے گئے، حاضری دی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہوا اور سرکار کی زیارت ہوئی، اور سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم یہاں پر آئے ہو، تمہارا کام ہندوستان میں ہے، اور جو میرے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے مجھ سے محبت کرنے والا، تم جاؤ ہندوستان میں، تمہارے دربار میں جو پہنچے گا وہ میری خوشبو محسوس کرے گا۔ آپ نے وصیت بھی فرمائی، اور وصیت اس سے قبل فرما بھی چکے تھے کہ میرا جب انتقال ہو تو میرا جو جسد ہے، میری جو نعش ہے، اسے سمندر کے حوالے کر دینا، اور یہ سمندر کا کام ہے کہ جہاں اسے پہنچانا ہے پہنچا دے گا۔ مختصر یہ کہ آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد میں وصال ہونے کے بعد میں سمندر کے حوالے کر دیا گیا، اور سمندر نے آپ کا جو جسد مبارک تھا وہ وہیں پر اپنی ایک طرح سے گود میں اٹھا کر اور وہیں پر لا کر رکھ دیا جہاں آج حضرت کی درگاہ شریف ہے، مزار شریف ہے۔ اس کے بعد میں وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ آج یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سمندر کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ آپ پتھر ڈال دیا کرتے تھے، اور پتھر ڈال کر ایک وہ جو جزیرے
की शक्ल में था, एक टापू की शक्ल में था, वहीं पर आप तशरीफ़ फरमा होते थे। तो उसके बाद में फिर रास्ता था नहीं, समुंदर है, समुंदर के बीच में एक टापू है, वहाँ तक जाने में दुश्वारी होती थी, पत्थर डाल के जाया जाता था। उसके बाद में फिर ये करम हुआ और उनकी ये करामत हुई, और अपने जो उनके एक अक़ीदतमंद थे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर, उनको ये इशारा भी दिया कि आप इस पे रास्ता बनवाइए, पत्थर डलवाइए, रास्ता बनवाना तुम्हारा काम है और उसकी हिफाजत करना मेरा काम है। इस तरह से रास्ता बना। आज भी वो करामत आपकी आज भी यहाँ पर वहाँ पर देखी जा सकती है कि दोनों चारों तरफ पानी ही पानी, बीच में एक जजीरा है, एक टापू है, और वहीं पर आपकी मज़ार मुबारक है। दरगाह शरीफ तकरीबन 4,500 मीटर मुरब्बा, 4,500 मुरब्बा मीटर में दरगाह शरीफ का कैंपस है पूरा। और वहीं पर आपकी दरगाह शरीफ है, मस्जिद है, और जो एक मीनार कमोबेश 85 फीट का मीनार है। आपकी मज़ार मुबारक जो है उसमें चांदी की जालियां लगी हुई हैं, और उसी जगह पे जो मीनार है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम भी उस पर नक्श हैं। तो आज भी जो लोग जाते हैं, जो मुरादें लेकर जाते हैं, अल्लाह ताला अपने उस महबूब बंदे के तुफ़ैल में उन मुरादों को पूरा फरमा दिया करता है, दुआएं मकबूल हो जाया करती हैं। नाज़रीन, ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे हज़रत पीर सैयद हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ, उनके रोज़ा मुबारक, उनके आस्ताना मुबारक का ये एक मॉडल अंजुमन रज़ाए रसूल इस साल जो आइंदा करीब 2 महीने के बाद में 12वीं शरीफ आएगी, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन्नबी का जब वक्त आएगा 12वीं शरीफ के दिन, ये मॉडल मोहल्ला बुखारी टोला खीरी टाउन में ये मॉडल नस्ब किया जाएगा, लगाया जाएगा, और आज से इसका आगाज़ किया जा रहा है। अंजुमन रज़ाए रसूल के जो सदर हैं हाफिज़ नदीम रज़ा साहब, वो इत्तेफाक से इन दिनों वो मुंबई में ही हैं, और थोड़े दिनों कबल उन्होंने हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाज़िरी का शर्फ भी हासिल किया था। लेकिन यहाँ पर इस वक्त अंजुमन रज़ाए रसूल के नाइब सदर मोहम्मद शाबान अंसारी साहब मौजूद हैं। हम ये चाहेंगे कि शाबान साहब बताइए कि आज ये आगाज़ आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही कोशिशों के बाद आज जो है हाजी अली दरगाह का मॉडल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, 2 महीने कमोबेश 12वीं शरीफ को अभी हैं, तो इन 2 महीनों में इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मॉडल मुकम्मल हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हसनैन साहब जो है पूरी मेहनत से, लगन से काम करते हैं, और सभी जितने अंजुमन के जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी मेहनत भरपूर करते हैं। इंशाअल्लाह सब कुछ हो गया, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा, सब होगा। अच्छा जी। नाज़रीन, मोहम्मद शादाब खान साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अंजुमन रज़ाए रसूल के ये सब बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं। कैसा लग रहा है आज आगाज़ कर दिया आपने? आगाज़ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और ये काम की शुरुआत हुई है, बिस्मिल्लाह हम लोगों ने कर दिया है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला जो है तैयार होगा मॉडल, तो देखने वाला होगा। और मास्टर हसनैन साहब की हौसला अफजाई करते हैं, बहुत मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये काम करते हैं, और बहुत ही मेहनत करते हैं दिन रात। और हमारी अंजुमन के जितने भी मेंबरान हैं वो भी इंशाअल्लाह बहुत मेहनत से काम करते हैं, और अपनी मतलब पूरी मेहनत के साथ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। सब लोग, सारे जो भी मेंबरान यहाँ पे हैं और जो नहीं हैं, वो सब भी हौसला अफजाई करते हैं, मास्टर साहब का साथ देते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। बहुत से लोग जितने भी हैं जो आ पाते हैं, जो नहीं आ पाते, जिनको जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, और काम में हाथ भी बटाते हैं वो लोग। मोहम्मद नसीम अंसारी साहब जो कि इस वार्ड के, मोहल्ला बुखारी टोला वार्ड के साबिक मेंबर हैं और इस अंजुमन रज़ाए रसूल के एक अहम ज़िम्मेदार भी हैं, वो भी बैठे हैं। आज ये काम का आगाज़ हो गया है, मॉडल बनने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको आज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा है। अच्छा। और अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत ही सब लोग मिलके, जितने अंजुमन के मेंबरान हैं, सदर हैं, सब मिलके बहुत ही बेहतर जो है काम इसका अंजाम दिया जाएगा। और सब लोग, सारे मोहल्ले के भी और दूसरे अपने कस्बे के सब लोग हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं और काम भी करते हैं। अच्छा। निपटाते हैं सब बढ़िया, और लगन से काम करते हैं, अल्लाह का एहसान और करम है। मोहम्मद जलील अंसारी साहब भी इधर बैठे हैं। आज ये काम शुरू हो गया है, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया लग रहा है, हम लोगों की बहुत खुशी होती है,
और अच्छा लगता है काम करने में, कराने में भी बहुत बढ़िया लगता है। 2 महीने का जो वक्त लगेगा, तो 2 महीने में हसनैन साहब जो इस मॉडल को तैयार करते हैं, और इससे पहले भी हसनैन साहब ने मॉडल तैयार किए हैं, तो कई घंटे इनको रोज़ाना देना पड़ेंगे। आप लोग किस तरह से इनको वक्त देंगे, इनकी मदद करेंगे, इनका सहयोग करेंगे? रात में हम लोग भी 3-4 घंटे इनको वक्त देते हैं, और दिन में तो अपना काम करते हैं, रात में टाइम देते हैं इनको। अच्छा, हमारे साथ मोनू भैया भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये काम शुरू हो गया है, मॉडल बनने का आगाज़ हो गया है आज से। आज ग़ालिबन 15 तारीख़ है, आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई को ईशा की नमाज के बाद में ये नियाज़ हुई, और नियाज़ के बाद में ये काम शुरू हो गया है। कैसा लग रहा है मोनू भैया? इंशाल्लाह अच्छा लग रहा है, और मेरी पूरी कमेटी को आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज शुरुआत हुई है। आज बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को इंशाल्लाह। इस मॉडल में 2 महीने कमोबेश आप लोगों को मेहनत करना होगी। हाँ इंशाल्लाह करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे, और इंशाल्लाह मेहनत जितनी होगी करेंगे इंशाल्लाह। ये मॉडल आज से शुरू हो गया। भांजे बताइए कैसा लग रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही अच्छा, और सभी मेंबरान का दिल से शुक्रिया, हुसैन मास्टर का दिल से शुक्रिया जो इस काम के लिए राज़ी हुए, और सभी मेंबरान का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज यहाँ मतलब पहला दिन है। आज सभी लोग मतलब जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, मतलब यहाँ हुसैन मास्टर का हाथ बटाएँ। अच्छा, रोज़ाना कई घंटे हसनैन साहब अपना यहाँ पर वक्त जब देंगे तब ये मॉडल तैयार होगा। आप लोग इनकी मदद करेंगे तो आपको भी कुछ घंटे इनका साथ देना जी होगा। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा उतना वक्त दिया जाएगा इंशाल्लाह इनको। अच्छा, आज ये मॉडल का आगाज़ हो गया है। हज़रत हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह मुंबई में जो दरगाह शरीफ है आपकी, तो ये मॉडल बन रहा है। आज इसका आगाज़ हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे मोहल्ले में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अगले साल भी एक मॉडल तैयार किया गया था, काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी मजमा हमारे मोहल्ले में चला था, काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा नाजरीन, ये चूँकि बड़ा मॉडल बन रहा है, और इस तरह के मॉडल बनने में ज़ाहिर सी बात है कि ख़र्चे होते हैं, और ख़र्चे के लिए अंजुमन रज़ाए रसूल के जो मेंबरान हैं, जो अरकान हैं, वो अपने उसमें कोऑपरेट करते हैं, उसमें सभी लोग मदद करते हैं। तो कितना ख़र्चा कमोबेश आ जाएगा? अभी तो शुरुआत हुई है, अब देखते हैं आगे कितना खर्चा आएगा, फिर तो बताएंगे। लास्ट में पता चला अंदाज़ा लगभग इस मॉडल में सिर्फ बात करूं तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये तो खर्च ही हो जाएंगे 60-70 मॉडल पे। अच्छा, बाकी जो और सजावटें होती हैं मोहल्ले के अंदर, जुलूस वगैरह निकलता है, उसको मिला करके तो 1 लाख के ऊपर ही निकल जाता है। नाजरीन, हर साल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी जिस दिन निकलता है हमारे कस्बा खीरी में, लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में 12वीं शरीफ को, तो ये मॉडल तो बनता ही है। इसमें 60-70-80 हज़ार जो भी लग जाते हैं, और उसके अलावा इसकी और इसमें इस सजावट वगैरह होती है, और दीगर और एहतमाम होते हैं, तो उन एहतमाम में भी ख़र्चा बहुत हुआ करता है। मॉडल जो तैयार करते हैं, जो फ़नकार, जो आर्टिस्ट हैं, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हैं, बल्कि अंजुमन रज़ाए रसूल के एक अहम ज़िम्मेदार रुकन भी हैं ये। और हर जितने भी ये मॉडल अब तक के तैयार किए गए हैं, जिसमें खीरी टाउन की जो ईदगाह है, ईदगाह का मॉडल तैयार किया था। इसके अलावा अभी पिछले साल दिल्ली की जो शाही जामा मस्जिद है, उसका मॉडल तैयार किया था। तो हसनैन साहब की ही ये फ़नकारी है। हसनैन साहब, आज ये मॉडल, इसका आगाज़ किया गया है, और आपने आगाज़ किया है। बड़ी मसरूफ़ियात हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, यकीनन बहुत मसरूफ़ियात हैं, और हम इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन आपने हज़रत हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत में, और ख़ास तौर से ये कहा जाए कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, चूँकि ये मॉडल हुजूर की पैदाइश का जब जश्न होता है ईद मिलादुन्नबी का, उसमें लगता है। तो आज आगाज़ हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज पहला दिन है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था कि आज पहला दिन है, तो हो सकता है कि अंजुमन के जो मेंबरान हैं वो ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सभी मेंबरान लब्बैक कहते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अच्छा, 2 महीने कमोबेश अभी हैं। 2 महीने में क्या ये मॉडल पूरा तैयार हो जाएगा? मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि इस मॉडल को वक्त पर पूरा मुकम्मल कर सकूं, और मेरे मेंबरान से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि इस काम में वो अपना पूरा सहयोग दें, पूरा हाथ बटाएं, ताकि मैं इस काम को वक्त पे अंजाम दे सकूं।
अच्छा, तो इस मॉडल के लिए अभी तो ये थर्माकोल, ये आपके पास क्या इसको बोलते हैं? ये थर्माकोल ही है। थर्माकोल ही है। जी। इसके अलावा और किस चीज़ की इसमें ज़रूरत लगेगी? क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस दरकार हैं? जी ये थर्माकोल है अच्छा, और ये टूथपिक्स वगैरह इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जो आलपिन वगैरह होती है उसी जगह पर, क्योंकि उससे जॉइंट जो हमारा होता है वो लूज़ रहता है, अच्छा, ये सख्ती से पकड़ लेता है तो अच्छा। जॉइंट हमारा बेहतर लगता है। अच्छा। बाकी ये फेविकोल रखा हुआ है, अच्छा। और भी इसके बहुत सारा मटेरियल होता है वो अच्छा। लगता है, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे मटेरियल आता है। अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मंगा ली गई। इस काम में जो आप ये बना रहे हैं, इस काम में कोई और तो आपका कोई मददगार है ही नहीं, बस ये हो सकता है कि हम लोग इसको ये आपका जो ये शीट है आपकी हम इधर से उधर कर दें, लेकिन बाकी और तो कोई इसमें मददगार आपका नहीं है। जैसे माइल्ड वर्क होता है, अच्छा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम, तो देखते देखते अंजुमन के जो मेम्बरान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं तो उनको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यहाँ पर ये काम होना है, तो उनको जब हम देते हैं थोड़ा भरोसे के साथ तो काम को मतलब उसमें हाथ बटाते हैं। अच्छा, जी। मॉडल बन जाएगा, उसके बाद में जब आप इसको नस्ब करेंगे, जहाँ पे भी आपको नस्ब करना है, लगाना है, तो उस वक्त भी आपकी ज़रूरत होगी? जी बेशक, बग़ैर मेरे तो ये मॉडल वहाँ पर इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। अच्छा, एक फ़नकार की जो सबसे बड़ी ये ख्वाहिश हुआ करती है, उसको जो है रुपए पैसे धन दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं होती है। एक फ़नकार की नाज़रीन ये ख्वाहिश हुआ करती है कि जो उसका फ़न है उसकी कदरदानी की जाए, और जो कुछ उसने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया है उसको देखने के लिए भी लोग आएँ। तो आप कस्बा खीरी क़ुर्ब जवार अतराफ़ के लोगों से क्या तवक्को रखते हैं? ईद मिलादुन्नबी के दिन जब ये लगेगा, बल्कि एक दिन क़ब्ल ही जो है लग जाता है और उसके 1-2 दिन बाद तक लगा भी रहता है, तो क्या आप कहना चाहेंगे, आवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा कि खीरी शरीफ में ये मॉडल लगाया जाएगा, लेकिन जो अतराफ़ में लोग हैं दूर दराज से देखने के लिए आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से और ये आपका बाकी और भी अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं लोग, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक भरोसे के साथ आते हैं कि बुखारी मोहल्ला की जो अंजुमन रज़ाए रसूल है वो बेहतर से बेहतर काम करती है। उनमें एक चाह रहती है कि वहाँ पर इस बार मॉडल लगा होगा तो अच्छा ही होगा, ज़रूर आएंगे। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस बार पूरी कोशिश के साथ मैं वो हाजी अली दरगाह का मॉडल बना रहा हूँ और आप लोग देखने के लिए ज़रूर आएँ। रोज़ाना कितने घंटे काम करेंगे? लगभग 3 से 4 घंटे हो जाएंगे। कब से कब तक? वही 9:30 बजे के बाद से काम शुरू होगा। अच्छा। और 12 साढ़े 12, और जब काम ज़्यादा होगा तो 1 भी बज सकता है, 1:30 भी बज सकता है, इस तरीके से। जी, काम को मुकम्मल करने के लिए देखते हैं कि कितना वक्त हमारे पास बच रहा है, उस हिसाब से घंटे बढ़ा देते हैं। अच्छा जी। नाजरीन, अभी हमने जो ये आर्टिस्ट हैं हसनैन साहब, जो ये मॉडल तैयार करें, आज इसका आगाज़ किया, बिस्मिल्लाह कर दी है, शुरुआत कर दी है, और इसमें कमो बेश 2 महीने का वक्त लग जाएगा। और अंजुमन रज़ाए रसूल के जितने भी ज़िम्मेदार हैं, ओहदेदारान हैं, वो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम भी अंजाम दिया करते हैं, और ये भी भरोसा है, यकीन है कि 2-3-4 घंटे जो भी रात का वक्त जो ये मॉडल बनेगा तो अंजुमन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ईद मिलादुन्नबी यानी 12वीं शरीफ को आप ये मॉडल इंशाअल्लाह आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा। सब कुछ ये हुजूर की मोहब्बत में होता है, और हुजूर की मोहब्बत में यकीनन क्या जो कुछ भी किया जाए जायज़ तरीक़ों से, शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए लाइटिंग की जाए, इस तरह के मॉडल्स जो भी मुक़द्दस मकामात के हैं जो भी हैं, और हुजूर के नाम पाक पर सब कुछ दिल जान माल जो भी कुर्बान कर दिया जाए, वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं माने रखता है, कुछ भी नहीं माने रखता है। सब कुछ तो उनके तुफ़ैल में हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है। तो इंशाअल्लाह ताला 12वीं शरीफ को इस मॉडल की ज़ियारत आप करेंगे, इस मॉडल को आप देखेंगे, और इस दौरान जितना जो कुछ भी हम आपको इस मॉडल के बारे में हफ़्ते 10 दिन के बाद में हम इसकी रिपोर्ट ज़रूर आपको दिखाया करेंगे कि अब कितना मॉडल बन चुका है, अब क्या बाकी रह गया, ये इंशाअल्लाह ताला रिपोर्ट आप देखते रहेंगे। गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। khiri.com को आप YouTube में सर्च करें, KHERI.com, khiri.com आप सर्च करें और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ मैं गुफ़रान अहमद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।